Good morning, guys. Welcome back to my channel. So today I have third chapter for the business environment, that is the international business environment, and we will be covering this topic very quickly because this comes for the 5 marker. This may or may not come, but the only thing that I want to highlight in this chapter that there is a particular way to read this chapter. Okay, अगर तुम एक एक ऐसे बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने लगोगे इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो जो जस्ट मेक थिंग्स सिंपलर आई हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर chapter as a recording. Now we will be covering topics and I guess मैंने animations भी डाली है, तो I'll quickly put and we'll continue the recording. Okay, now while I was actually putting the animations in my PPT, I noticed I only have 9 slides to offer. So you can quickly imagine कि ये कितना easy chapter है, quickly कितना quickly हम ये chapter कर सकते हैं. We will be doing this chapter with a lot of example, and you just need to remember one word for this particular chapter, that is pestle. So anyone in your college, in your WhatsApp group ask you, what is in chapter number 3 of international business? So you will have to mention just single word, that is pestle, and you are done with the chapter. Okay, so this is the trick of doing this chapter, that you need to do according to this particular word. Because अगर तुम बुक के अकॉर्डिंग जाओगे, एक इकोनॉमिक यहाँ दिया हुआ है, फिर सोशल दिया हुआ है, फिर लीगल, फिर एनवायरमेंट, ठीक है, तो इससे तुम्हारा फ्लो नहीं बनेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर थिंग्स. इंस्टेड do the chapter according to the pestle guide so that it actually becomes easier for you. Okay, I hope you understand it. Now before you move on to the pestle, we will be covering what is the meaning of business environment. एक बात बताती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ ये आईबी के बिजनेस में थिंक लॉजिकली. ओके, अगर आज एक कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, सो एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू क्रॉस योर boundaries. You need to cross the boundaries of your country. Okay, you need to actually go export goods, import goods for yourself for the better technology, or you need to export goods for the better sales, better profits. So आपको बाहर जाना ही पड़ेगा. You can not work in isolation. आज तुम ये नहीं कर सकते कि भैया मैं पंजाब में बैठा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ पंजाब में ही करूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा. आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा वेयर यू विल थिंक यार पंजाब वालों के पास, सबके पास मेरा एक गुड है, अब मुझे आगे जाना है. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू नीड टू एक्चुअली बी वेरी कॉम्पिटिटिव, यू नीड टू वर्क आउट ऑफ योर बाउंड्रीज एंड यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन. ओके, सो आपको ग्लोबल फर्म, अगर आपका बहुत अच्छा टारगेट है तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा, राइट? बट एक बात बताओ, क्या जो टेक्नोलॉजी या जो स्ट्रैटेजी मैं इंडिया में फॉलो कर रही हूँ, क्या वो सेम स्ट्रैटेजी मैं यूके में जाके फॉलो कर सकती हूँ? I'll tell you no. This is the answer is no. I'll tell you why. First of all, सबने आई गेस मैकडी का बर्गर खाया होगा, राइट? अच्छा, उसमें एक आता है तुम्हारा समथिंग चिकन महाराजा और समथिंग लाइक दैट. ओके, but in case you go to UK, you will not find that particular burger in their menu. I'll tell you two reasons. First of all, India वालों को चटपटा चाहिए, ठीक है, तो मे बी UK वालों को ना चाहिए हो, ठीक है, because UK people really don't like that spicy food. So McD, it is such a huge firm, has to alter their menu according to the taste of people. Okay, so this is how they have changed their strategy in order to fit into the Indian market. So do you see, when you are actually moving across boundaries, across cross borders, you need to develop a different strategy for different market. सिमिलरली इफ आई टॉक विद इन इंडिया, एक बात बताओ, दिल्ली में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा रिच लोग हैं एज कंपेयर टू द बिहार. ओके, ओके, सो वहां पे आपको ज्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का एज कंपेयर टू द दिल्ली, बिकॉज वहां पे जाके आपको लोगों को बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा. लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट द सैनिटरी पैड, इफ यू सी इन दिल्ली, यू मे सी अ सैनिटरी पैड,
advertisement in just 1 or 2 seconds, ठीक है, and no one is coming door to door to sell their sanitary pads, okay, but when it comes to Bihar, women have to be really educated. उन्हें literally door to door service जाके समझाना पड़ता है that why it is helpful and why it is better for your health. So do you understand the difference between the strategies that one company is following even within the boundaries of India? So that is how I have, come up with the explanation of business environment. I hope you understood it. Now, there are few factors that will impact your business directly or indirectly. तो जब भी हम कोई external factors से external चीजों से impact होता है हमारा business, that is known as business environment. Okay, did you get it? Please write in the comment section, go and say yes. ये ना मुझे मोटिवेशन देता है, it actually tells me that you guys are watching it very nicely. You guys are not just skipping tuck 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 and done. ठीक है? Now let's move on to the characteristics. Why the characteristics is important, I'll tell you. जब भी business environment का topic आता है, सीधा तुम pestle से नहीं start कर सकते. You need to write 1 or 2 para about the business environment. Why? Because अगर तुम्हारा pestle में कुछ भी गलत हुआ तो at least तुम्हारा examiner can give you 2 to 3 marks in your first para of the answer. Okay, this is very easy. Business environment is aggregative. When I'm talking about the aggregative, I am saying aggregate का मतलब क्या होता है? Sum. अगर हम मैथ्स में जाए मतलब जोड़ना. किसको जोड़ना है? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेंगे. अब मैं कहती हूँ यार मेरे को तो भाड़ में जाए, मैं सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स देखूंगी. तो भैया जी आप इंटरनल भी तो देखो, आप अपनी लेबर देखो, वर्कफोर्स देखो, कस्टमर्स देखो, डेटर्स देखो, क्रेडिटर्स देखो. ठीक है, you cannot ignore any of it, either the external factors or the internal factors. Did you get this point? Fine, interrelated. Now the business elements are interrelated. I'll tell you interrelated, ये आपको पेस्टल के बाद ज्यादा समझ में आएगा, बट अभी एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. 1991 में एक कंसेप्ट आया था लिबरलाइजेशन. हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? ठीक है, उसके साथ ही चीजें इतनी चेंज होने लग गई कि हमारे फॉरेन सेक्टर्स एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आए. ओके, सो how the economic liberalization of India impacted the foreign investment. So do you see the interrelation? Chalo, I'll give you one more example. Let's say एक फैक्ट्री थी. जस्ट इमेजिन इंडिया विदाउट एनी एंटी पॉल्यूशन लॉज. ओके, हम उस एरा में हैं जहाँ पे अभी कोई एंटी पॉल्यूशन लॉज नहीं आए. एक फैक्ट्री है, बहुत पॉल्यूशन करे जा रही है, मतलब वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हर तरीके का पॉल्यूशन कर रहे हैं. अब जगह सोशल ग्रुप्स. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम सोशल ग्रुप्स चले, नॉट चले, जगे. ठीक है. एंड फिर जाके इंडिया की गवर्नमेंट जागी, डोंट, वी नीड लॉज, वी नीड एंटी पॉल्यूशन लॉज. So do you see the interrelation, that how the social groups came up, how the laws came up? Now dynamic, it is obviously, it keeps on changing. कभी कोरोना आ रहा है, कभी डोनाल्ड ट्रम्प आ रहा है, कभी यूएस में कुछ हो रहा है, बॉन्ड्स क्रैक हो रहे हैं. ठीक है, so it is dynamic, it just keeps on changing. इंडिया में कभी स्टार्टअप की लहर आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी जा रही है, कभी लॉस की आ रही है. So it just keeps on changing. It is not constant. Uncertain. Do you know everything? Whenever we are talking about future, we are talking about uncertainty. We are not very certain कि ये होगा ही होगा. ये कल earthquake भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, क्या पता मैं कल कोई recording ना दूं. ठीक है, तो it is very uncertain. We are talking about future. General and specific force, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ नाम पे जाओ. जनरल, जो मेरे सच एज तुम्हारा इकोनॉमिक, सोशल, नेचुरल, पेस्टल हो गया, जो हर बिजनेस एंटरप्राइज को इम्पैक्ट कर रहा है. कोरोना, जनरल.
स्पेसिफिक, जब तुम्हारे ही इंडिविजुअल एंटरप्राइज ही तुम्हारी इम्पैक्ट हो रही है। मेरे बिजनेस में मेरे इन्वेस्टर्स ने मुझे धोखा दिया एंड सारी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली, तो सब बिजनेस को तो फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ मेरे बिजनेस को पड़ा, तो दैट वाज स्पेसिफिक टू मी, restricted to me. Okay, I'll give you one more example. Let's say, चलो छोड़ो, बहुत इजी है, जनरल और स्पेसिफिक इतना तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन द मेन कंपोनेंट्स जो तुम्हारे पेपर में आ सकता है, दैट इज पॉलिटिकल पेस्टल, PESTEL. Always remember this word for chapter number 3. We'll quickly do each one by one. Let's come up on the political environment. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मतलब। देखो यहाँ पे मैंने मतलब नहीं लिखा बिकॉज तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि इसका मतलब क्या होता है। डू यू नो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब तो सबको आता होगा, ठीक है। तो एक बिजनेस को सिर्फ अपनी होम कंट्री की चिंता होनी चाहिए या बाहर की भी चिंता होनी चाहिए? दोनों कंट्री की चिंता होनी चाहिए। लेट्स से आज अगर एप्पल ने साकेत में न्यू ऑफिस ऑफिस कह रही हूँ, न्यू स्टोर खोला है, तो दैट इज ड्यू टू गुड रिलेशन, दैट इज ड्यू टू गुड लॉज, रेगुलेशंस, अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, ठीक है। तो पॉलिटिकल बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आज मेरी गवर्नमेंट कह दे हम तुम्हें नहीं आने देंगे, तो क्या टिम कुक आ पाता, स्टोर एप्पल खोल पाता? नहीं खोल पाता, ठीक है। तो पॉलिटिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट आउटसाइड इंडिया टू, बिकॉज अगर इंडिया वालों को बाहर जाके कोई लेट्स से बर्गर सिंह को, सरदार सिंह जो भी यार उसका नाम है, वो बर्गर वाला उसे अगर आज यूके में जाके फर्म खोलनी है, तो इट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट बाहर की कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिटिकल थिंग्स भी अच्छी हो। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? इज इट डेमोक्रेटिक, इज इट नॉट डेमोक्रेटिक? ओके, now, when I'm talking about the political system, I am telling you what is the nature of that political system in that particular country. Okay. Now, if I talk about the India, India is much democratic country as compared to the Korean countries. Obviously, Korean countries does not have that well developed democracy or in fact democracy in their country. Okay. International political relations, how Modi ji have good relations with the Donald Trump, with Joe Biden, okay? So how he has relations with the countries outside India, that actually impacts the exports and imports. गवर्नमेंट बिजनेस रिलेशन, एक कंट्री और उसके गवर्नमेंट का कैसा रिलेशन है? डज द गवर्नमेंट इज इन फेवर ऑफ promoting or not? Let's say nowadays government is promoting startups, right? तो obviously अगर मैं startups करना चाह रही हूँ, तो it will actually provide lot of support from the government. तुमने शार्क टैंक में भी देखा होगा, जहां वो बताते हैं कि गवर्नमेंट से हमें इतनी सब्सिडीज मिली, इतनी हेल्प मिली। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट बिजनेस रिलेशंस आर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्या तुम्हारी कंट्री में या दूसरी कंट्री में जिसमें तुम टारगेट कर रहे हो स्टेबिलिटी है या नहीं? बिकॉज अगर इनस्टेबिलिटी है, यू नीड टू एक्चुअली टेक ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरमेंट a lot more than the stable environment. Okay, now what are the political risks? Why are we actually studying about the political system? Why are we actually even considering political environment? Due to certain risks that it imposes on our business. What are those risks? First of all is confiscation. Confiscation क्या होता है? जब हमारी foreign firms seizure हो जाता है, seizure of the assets of a foreign firm by a host country without any compensation. For example, Chinese government confiscate हो गई थी US प्रॉपर्टी पे in 1949. मतलब अगर आप कोई भी चाइनीज कंट्री यूएस में सेटअप करने जा रहे हो एंड यू डिड इट विदाउट परमिशन और यू डिड इट विद देयर परमिशंस, आई डोंट केयर, योर एसेट्स विल बी सीज्ड, ठीक है, बिकॉज यू आर फ्रॉम चाइना।
डोमेस्टिकेशन क्या होता है? जब होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट रिक्वायर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द फॉरेन फर्म्स एंड इट विल बी ग्रेजुअली ट्रांसफर टू द लोकल फर्म्स। ठीक है, तो क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन में कोई भी फॉरेन फर्म्स आई, सबसे पहले गवर्नमेंट ने उसका कंट्रोल लिया एंड उसे लोकल फर्म को दे दिया। नेशनलिज्म में क्या होता है? नेशनलाइजेशन में होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट टेक ओवर द ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट फर्म। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक सारे गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए थे इन 1969। ऑपरेटिंग रिस्क जब अराइज होता है जब होस्ट गवर्नमेंट इम्पोज करती है कंट्रोल ऑन द फॉरेन फर्म्स। फॉर एग्जांपल, कोको कोला को और आईबीएम को गवर्नमेंट ने 1977 में कहा था गो फ्रॉम अ कंट्री। ओके, now how do you minimize these risks? Is there any way that you can actually reduce this particular risk? Is there any ways I can minimize? Can the risk be eliminated? No, because this is something that is not in your hand. Okay, but there are ways to minimize this. सबसे पहले यू नीड टू डू द इन डेप्थ स्टडी कि एक कंट्री में अगर मैं जा रही हूँ तो उसकी कंडीशन क्या है या मेरी कंडीशन क्या है बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। सोशल कंसर्न शो करो, लोकल लोगों को लो जिससे तुम्हारा गवर्नमेंट भी साथ दे। पार्टनर विद द लोकल फर्म्स, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप आके हमारी कंट्री कंट्रोल कर रहे हो। इंस्टेड यू आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द लोकल फर्म्स एंड हेल्पिंग देम टू ग्रो। टेक इंश्योरेंस, कुछ होता भी है तो आपको इंश्योरेंस से बचत मिलेगी। So do you get this political environment? Did I make myself clear, or you need more clarification, or is there any point you are not able to understand? Let me know. Now let's come on to the पेस्टल में से पी हो गया, ई पे आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम, economic environment actually is the most important environment on international business. Okay, economic system क्या होता है? It consists of institutions set up to satisfy human needs and want. तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है? आपका प्राइवेट ओनरशिप होती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज की। कम्युनिज्म में क्या होता है? स्टेट के पास सारी पावर्स होती है, स्टेट के पास सारे मीन्स होते हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मिक्स इकोनॉमी, जहां पे कोई प्योर नहीं है कि कैपिटल स्टेट के पास होगी या प्राइवेट के पास होगी, इट इज मिक्स्ड। सो इंडिया इज अ dash, India has a dash economic system. Tell me in the comment section which system do you think India lies in? Capitalism, जहां पे सारे प्राइवेट है, कम्युनिज्म जहां पे सिर्फ स्टेट ओन कर रही है, या मिक्स जहां पे स्टेट एंड प्राइवेट दोनों ओन कर रही है? थोड़ा दिमाग लगाओ एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तीन ही हो सकती है, लो, मिडिल एंड हाई। हाई सिर्फ रिच लोग है, लो सिर्फ लो है, मिडिल अपर क्लास भी है, लोअर मिडिल इनकम भी है एंड अपर भी है। Again, tell me in the comment section which do you think India is? India is a low income, high income, or middle income? Economic policies. Now, before we discuss economic policy, there is one more topic in your book, that is structure of economy. सबने तीन terms पढ़े होंगे जो अभी मैं लिखने वाली हूँ, that is primary, secondary, and tertiary. These are the structure of economy. I hope you know this. Now comes to economic policies. Economic policy is the significant influence on the business. इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जहाँ पे हम रोल डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंट एंटिटीज का, डिफरेंट सेक्टर्स का एक इकोनॉमी में। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज 1991 से पहले मैं बात करूं तो बहुत रिस्ट्रिक्शन थी इंडिया में कि आप फॉरेन कैपिटल नहीं ला सकते, टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते, बट ये सब अब बहुत ही ज्यादा रिमूव हो गई है, इसलिए हम आज ज़ारा के कपड़े या एप्पल का आईफोन ले पा रहे हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट। ठीक है, जब हम इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं दैट डोंट
you need to stop imports. Why do you think government is so keen to actually restrict imports in any country, be it India or be it any other country? Tell me. Think, just pause video and think. Foreign exchange policy, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीस एंड डॉलर्स। तो जितना इजीली आपकी एक्सचेंज हो रही है करेंसी, उतना ज्यादा मूवमेंट होता है कैपिटल में। मॉनेटरी पॉलिसी, जब आरबीआई तुम्हारा क्रेडिट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब पे थोड़े रेट्स, तुमने वो पढ़ा है ना इको में, सीआरआर, liquidity ratio, liquidity reserve ratio, cash reserve ratio. So RBI actually takes many steps in order to impact these policies, fiscal policy, monetary policy. Okay, guys, this is very generic. ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ समझाने वाला था नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग वी आर ऑल आर लुकिंग एट। दिस वाज द ओनली थिंग दैट यू कैन एक्चुअली लर्न, बट दिस इज नथिंग बट इको। तो इकोनॉमिक में अगर आता है तो आप कुछ नहीं झाड़ोगे, सिर्फ इको झाड़ोगे। इको हम सब ने क्लास 11th एंड 12th में पढ़ी है। ओके, नाउ सोशल, सोशल इज द इजीएस्ट। आई टेल यू व्हाई। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, सोशल में क्या आता है? सोशलाइज करो। सोशलाइज का ये मतलब नहीं है क्लबिंग में जाओ फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? ओके, लेट्स कंसिडर कि हम क्लबिंग में जा रहे हैं फ्रेंड के साथ, तो उसे ऐसे पढ़ते हैं डेमोग्राफिक, ठीक है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग हैं, ठीक है? बिकॉज अगर ज्यादा लोग होंगे क्लब में तो ज्यादा लिकर बिकेगी। सिमिलरली अगर कंट्री में ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, चाइना एंड इंडिया, ठीक है? एज स्ट्रक्चर, बार में घुसने की एंट्री 25 है, ठीक है? तो लेट्स से सारा जो क्राउड होगा वो अबव 25 होगा। सिमिलरली कंट्री की बात करूं, अगर ज्यादा बुढ़े लोग हैं तो दवाइयां ज्यादा बिक्री होगी, मेडिकल सर्विसेज ज्यादा बिक्री होगी। अगर यंग लोग हैं तो ऑब्वियसली यूथ वाले चीजें ज्यादा बिक्री होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, मैं फार्मा कंपनी हूँ, फार्मा, ठीक है? तो आई विल ऑलवेज प्रेफर द कंट्री विच हैव ओल्ड पीपल। जेंडर, फीमेल ज्यादा है, मेल ज्यादा है। ऑक्यूपेशन, आर दे ऑल लेबर है या तुम्हारा सैलरीज है, ठीक है? एंड अदर ट्रेंड्स आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। आजकल माइग्रेशन, एवरीवन इज मूविंग टू यूएस, कनाडा, दुबई। Okay, so what is that particular rate? Why, um, that is developing countries के लोग आजकल यूएस बहुत जा रहे हैं और बहुत रैपिडली जा रहे हैं, ठीक है? तो इन कैसे वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा? एंड फैमिली स्ट्रक्चर, डज दैट पर्टिकुलर कंट्री हैव joint system or nuclear system? For example, in India nowadays people are considering nuclear families over the joint families. तो obviously nuclear families होंगी तो ज्यादा डिवाइड होगा, ज्यादा डिमांड आएगी, ठीक है? ज्यादा ड्यूरेबल्स होंगे। जस्ट अ मिनट गाइस। नाउ कम्स टू टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल सबको पता है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम नोकिया टू एप्पल, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मशीन्स यूज्ड इन योर फैक्ट्रीज। तुम्हें पता नहीं है यार, आजकल की फैक्ट्रीज हैव बिकम इतना ज्यादा एडवांस्ड, रोबोट्स आ रहे हैं। मेडिकल में देख लो या तुम फूड उसमें देख लो, रोबोट्स। सो टेक्नोलॉजी, are we using appropriate technology? Okay, how will we, it will actually impact my business? Now, as I mentioned, technological changes are not only restricted to Apples to Nokia, but हमारा वो भी आता है, कैसे हम यूज कर रहे हैं रोबोट्स एंड एवरीथिंग। तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप एक वन कंट्री, अगर कोई यूएस में कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उसका बिजनेस है, तो ही मे थिंक दैट यार ये मैं बेच सकता हूँ, और व्हाट डू यू कॉल दोस टर्म्स यार, जस्ट अ मिनट, हाँ, लाइसेंसिंग पे बेच सकता हूँ, ठीक है? सो ऑल्सो लेट्स से यूएस में कोई बिजनेस है, बहुत महंगा चल रहा है बिकॉज ऑफ बीइंग द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी,
तो मैं इंडिया में जाके आई मे ट्राई टू शिफ्ट माई सेल्फ टू द लेबर इंटेंसिव, बिकॉज इंडिया में लेबर बहुत चीप है. ओके. Now, environment and natural, very easy. I have nothing to discuss because इस पे आप पूरा खुद लिख सकते हो कि natural is something very uncertain, very unpredictable, very dynamic in nature. Because even if um, one insures, then also it can actually impact your business. How natural calamities like earthquake can happen. Secondly, you can always take measures in order to remove this, not remove but mitigate this risk. Okay. And thirdly, businesses are getting impacted because they are trying to shift themselves to the countries which are rich in resources. For example, India. ठीक है, बहुत ज्यादा rich in resources, especially when you move on to the Kerala side, if you are a tea company or a coffee company. Okay. नाउ लीगल एंड रेगुलेटरी, पेस्टल में लास्ट आता है लीगल एंड रेगुलेटरी. हर कंट्री की रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे. ठीक है. लेट्स से आज अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं तो द एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिकर एंड पान बहार मसाला इज इलीगल. दैट इज व्हाई सरोगेटिंग एडवर्टाइजिंग यूज होती है. ठीक है. बट व्हेन यू गो टू यूएस, मे बी दिस इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट लॉ. एंड मे बी आप उनके टीवी पे लिकर देख लो. ठीक है. वेरी ओपनली डिफरेंट रेगुलेशंस होगा. लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इट कम्स इन कॉमन लॉ, सिविल लॉ एंड थियोरेटिकल लॉ. थियोरेटिक लॉ, you can just mention the name. Okay. International laws क्या होते हैं? That is actually governing whole international. ठीक है. जो आपको बताते हैं obligations of a buyer and the sellers when you are internationally selling the goods. डिस्प्यूट्स कैसे सेट होंगे? लेट्स से आज मेरी बिजनेस या आज मेरे कुछ डिस्प्यूट्स हो गए हैं ड्यू टू लीगल इश्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पूरी पूरी चीजें मेंशन करो अपने लेबल पे. ठीक है. साइड इफेक्ट्स, शेल्फ लाइफ एंड क्या क्वालिटी है, सेफ्टी. सो योर product should actually pertain to that particular safety. Let's say I'll quickly give you an example. For example, आज बॉर्नविटा का कोई कंट्रोवर्सी चल रही है. ठीक है. व्हाई? बिकॉज देयर इज एन इन्फ्लुएंसर हु सेड कि इसमें बहुत शुगर कंटेंट है. ठीक है. एंड लीगली बॉर्नविटा ने प्रूव किया कि ये कैपेसिटी से कम है. ठीक है. जो एक नॉर्मल चाइल्ड को लेना चाहिए. तो आज लेट्स से 25 ग्राम्स में बात कर रही हूँ इंडिया की. दिस इज एन एग्जांपल. मेरे को प्रॉपर फिगर्स याद नहीं है ऑनेस्टली. तो 25 ग्राम्स इंडिया में बोला कि ठीक है. बट व्हेन आई मूव टू दी यूएस, इट्स एट 20 ग्राम. तो यहाँ पे मेरी बॉर्नविटा बच जाए, बट वहां पे तो उसे लीगली स्यू हो जाएगा वो. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ द कंसिडरेशंस व्हेन यू आर मूविंग अक्रॉस द कंट्रीज. फाइन. I hope you understood this particular chapter. Thank you so much for watching it till the end, in case you are watching. And please comment below and how did you like it? How can it be improved in future sessions? And do not forget to subscribe to my channel. So, and also sorry for all the in between recordings that I had to pause due to my home. So yeah, thank you so much. Have a great day. All the best for your exam. Kill it. Waiting for your results and exam. Bye bye.